Good morning, children. Today we will start our lesson Glimpses of India. So, children, this lesson this lesson has three parts. First, a baker from Goa, then Coorg, and then tea from Assam. Now, today we will start our lesson A Baker from Goa. Children, lesson A Baker from Goa is written by Lucio Rodriguez. He was a great Konkani essayist. He wrote several articles in English and Konkani to various periodicals and magazines. Now come to the theme of the story, A Baker from Goa. Children, A Baker from Goa. In this chapter, the writer, he presents a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. पेन पोर्ट्रेट कहते हैं चित्रण. इसमें क्या किया गया है? राइटर ने चित्रण किया है किसका? एक ट्रेडिशनल गोवा के गांव के एक बेकर का, बेकर वन हु बेक्स द ब्रेड का चित्रण है, जिसका जो स्थान है उसके सोसाइटी में वो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एल्डर्स स्टिल थिंक fondly of the famous Portuguese loaves of bread. The family tradition is still carried on even today by the new generation of bakers or peddlers in Goa. Bakers, they are also called peddlers. Baker को पैदर के नाम से बुलाया जाता है गोवा में आज भी. Even today, marriage gifts are meaningless without the sweet bread or the bowl. Just as the party or a feast loses its charm without Goan bread. Now, children, come to the chapter A Baker from Goa. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and the famous loaves of bread. Our elders, हमारे जो पूर्वज को उन पोर्टुगीज डेज, उन पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं. पुर्तगाली और उनके फेमस ब्रेड के लोव्स पीस. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. उन ब्रेड को खाने वाले ना रहे हो, पर उनको बनाने वाले आज भी वही हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हमारे बीच वो मिक्स करने वाले, मिक्सर्स मिलाने वाले, बेलने वाले और वो ब्रेड को सेकने वाले आज भी हैं. Those age-old time-tested furnaces still exist. वो सदियों पुराने समय की फर्नेसेस कहते हैं, जो भट्टियाँ हैं, वो आज भी मौजूद हैं. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. उन भट्टियों में जो आग है वो आज भी नहीं बुझी है. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo hurdling his arrival in the morning can be heard in some places. और वो थर्ड की जो आवाज़ है और उस ट्रेडिशनल बेकर के बांस की खनक, उसके आने की सुबह सुबह घोषणा करती हुई कुछ प्लेस पर आज भी सुनी जा सकती है. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. Maybe हो सकता है जो फादर हैं वो अलाइव, जीवित ना हो, पर जो बेटा है वो अभी भी फैमिली के जो प्रोफेशन है उसको जारी रखे हुए हैं. These bakers are even today known as peddler in Goa. ये बेकर
आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, companion and guide. अब बेटे in this paragraph the writer is saying that during our childhood, कि हमारे चाइल्डहुड के दौरान, when वो कैसे थे, हमारे बचपन के दौरान, जो बेकर थे वो हमारे क्या थे, हम our friend, हमारा फ्रेंड था, कंपेनियन साथी था, एंड गाइड और हमारा गाइड मार्गदर्शक हुआ करता था। He used to come at least twice a day, and he used to come, जो बेकर थे वो दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. फर्स्ट टाइम बेकर कब आते थे उनके घर, एक बार तब आते थे जब वो क्या करने के, सेल करने के लिए, लगाने के लिए सुबह निकलते थे, और फिर तब जब वो अपनी ह्यूज बास्केट, बड़ी सी टोकरी खाली लेकर वो लौटते थे। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. और उनकी जो बांस की जो खनक थी वो हमें नींद से जगा देती थी और हम उनसे मिलने के लिए भागते। Why was it so? अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों था। Was it for the love of the loaf? क्या वो ब्रेड के लव के लिए था? Not at all, बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin. जो ब्रेड थे वो किसी पैस्किन या बेस्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी। The maid servant of the house. पैस्किन और बेस्टिन कौन होते थे? They were the maid servant of the house. घर के maid servant होते थे। What we longed for were those bread bangles, which we choose carefully. अब वो क्या कह रहे राइटर, कि जिसके लिए हम लॉन्ग तड़पते थे वो क्या थे, उस ब्रेड पे लगे हुए बैंगल्स थे जिनको हम बड़े केयरफुली चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल में, कई बार वो क्या होते थे, वो स्पेशल बने हुए स्वीट ब्रेड होते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ ए स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। अब इसमें उसने क्या बताया राइटर ने, कि कैसे वो एंट्री करता था, जो बेकर था वो कैसे उनके घर में प्रवेश करता था। जो बेकर था वो म्यूजिकल एंट्री करता था और अपने स्पेशल बने हुए बांस के डंडे को झंझंग की आवाज़ के साथ करता था। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. और जो बेकर था वो एक हाथ बास्केट को सहारा देते हुए और दूसरा हाथ बांस को धरती में पटकते हुए। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो lady of the house को वो greet, वो नमस्कार के साथ सत्कार करते थे और फिर अपने बास्केट को खड़े बांस पर रखते। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब वो राइटर कह रहे हैं कि at that time we were kid, हम बच्चे थे तो हम बच्चों को हल्की सी धमकी के साथ दूर किया जाता और सर्वेंट के हाथों में ब्रेड को दे दिया जाता। But we did not give up, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। We'd climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, तो वो क्या करते, वो एक बेंच पर चढ़ते या पैरापेट दीवार पर चढ़ते और बास्केट में झांक कर देखते। Somehow, किसी न किसी तरह। I can still recall the typical fragrance of those loaves. अब वो कह रहे हैं कि मैं आज भी उन ब्रेड की विशेष जो महक है उसको याद कर सकता हूँ। Loaves for the elders and the bangle for the children. Loaves, bread, elders के लिए, बुजुर्गों के लिए, और ब्रेड में जो बैंगल्स लगे हुए थे वो बच्चों के लिए। Then we did not even care to brush our teeth. और फिर हम अपने दांतों को ब्रश करने की हम केयर भी नहीं करते,
और वॉश और माउथ, और न ही अपने माउथ को साफ करने की परवाह करते। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों करनी चाहिए। हु टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश के लिए मैंगो के लीफ को तोड़ने की परेशानी कौन उठाता। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिर वो क्यों जरूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टीथ कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, जो टाइगर है वो कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता, जो हॉट टी है वो सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर देती थी।